पिता परमेश्वर, हम आपसे धन्यवाद करते हैं। रिदा नमा शराखासी आत्कुन बरहिल्लर बहा अखासे कतकिन बरहुल्लर हस्सा। यह हिजकिय्याल की भविष्यवाणी की पुस्तक, उसका 3 और 4 अध्याय हम पढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं। रबान ताश करके 3 रबहंत रहल रबहा का सियांत रहस्सा। इंग्लिश में जब हम पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पवित्र आत्मा, तेरे बिना इस वचन को सच में हम नहीं समझ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। पवित्र आत्मा, बस तुझ पर हम निर्भर है। पवित्र आत्मा, तू जितना बताएगा, जितना सिखाएगा, उतना ही हमको मालूम पड़ेगा। हमारे अंदर से अज्ञानता को नाश कर और हमें परमेश्वर के वचनों में पूर्ण रूप से उजियाले में भर दे। नासरी यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हम पढ़ेंगे एजेकियल 3 चैप्टर 4 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्शन में से, और फिर पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। एजेकियल 3 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। Moreover, he said unto me, Son of man, eat that thou findest, eat this roll, and go speak unto the house of Israel. So I opened my mouth, and he caused me to eat that roll. And he said unto me, Son of man, cause thy belly to eat, and fill thy bowels with this roll that I gave thee. Then did I eat it, and it was in my mouth as honey for sweetness. And he said unto me, Son of man, go, get thee unto the house of Israel, and speak with my words unto them. For thou art not sent to a people for a people of a strange speech and of an hard language, but to the house of Israel. Not to many people of a strange speech and of an hard language, whose words thou canst not understand. Surely, had I sent thee to them, they would have hearkened unto thee. But the house of Israel will not hearken unto thee, for they will not hearken unto me. For all the house of Israel are impudent and hard-hearted. Behold, I have made thy face strong against their faces, and thy forehead strong against their foreheads. As an adamant harder than flint have I made thy forehead. Fear them not, neither be dismayed at their looks, though they be a rebellious house. Moreover, he said unto me, Son of man, all my words that I shall speak unto thee receive in thine heart, and hear with thine ears, and go get thee to them of the captivity into the children of thy people, and speak unto them, and tell them, Thus saith the Lord God, whether they will hear or whether they will forbear. Then the Spirit took me up, and I heard behind me a voice of a great rushing, saying, Blessed be the glory of the Lord from his place. I heard also the noise of the wings of the living creatures that touched one another, and the noise of the wheels over against them, and a noise of a great rushing. So the Spirit lifted me up and took me away, and I went in bitterness in the heat of my spirit. But the hand of the Lord was strong upon me. Then I came to them of the captivity at Tel Abib, that dwell by the river of Chebar, and I sat where they sat, and remained there astonished among them 7 days. And it came to pass at the end of 7 days that the word of the Lord came unto me, saying, Son of man,
I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me. When I say unto the wicked, Thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Yet if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Again, when a righteous man doeth turn from his righteousness and commit iniquity, and I lay a stumbling block before him, he shall die, because thou hast not given him warning. He shall die in his sin, and his righteousness which he hath done shall not be remembered, but his blood will I require at thine hand. Nevertheless, if thou warn the righteous man that the righteous sin not, and he doeth not sin, he shall surely live, because he is warned. Also thou hast delivered thy soul. And the hand of the Lord was there upon me, and he said unto me, Arise, go forth into the plain, and I will there talk with thee. Then I arose and went forth into the plain, and behold, the glory of the Lord stood there as the glory which I saw by the river of Chebar, and I felt on my face. Then the Spirit entered into me and set me upon my feet and spake with me and said unto me, Go, shut thyself within thine house. But thou, O Son of man, behold, they shall put bands upon thee, and shall bind thee with them, and thou shalt not go out among them. And I will make thy tongue cleave to the roof of thy mouth, that thou shalt be dumb, and shalt not be to them a reprover, for they are a rebellious house. But when I speak with thee, I will open thy mouth, and thou shalt say unto them, Thus saith the Lord God, He that heareth, let him hear, and he that forbeareth, let him forbear, for they are a rebellious house. एजेकियल 4th चैप्टर किंग्स जेम्स वर्जन में से ही पढ़ रहे हैं. पहले वचन से फर्स्ट वर्स से, Thou also, son of man, take thee a tile and lay it before thee, and portray upon it the city, even Jerusalem, and lay siege against it, and build a fort against it, and cast a mount against it, set the camp also against it, and set battering rams against it round about. Moreover, take thou unto thee an iron pan, and set it for a wall of iron between thee and the city, and set thy face against it, and it shall be besieged, and thou shalt lay siege against it. This shall be a sign to the house of Israel. Lie thou also upon thy left side, and lay the iniquity of the house of Israel upon it according to the number of the days that thou shalt lie upon it. Thou shalt bear their iniquity. For I have laid upon thee the years of their iniquity according to the number of the days, 390 days. So shalt thou bear the iniquity of the house of Israel. And when thou hast accomplished them, lie again on thy right side, and thou shalt bear the iniquity of the house of Judah,
40 days. I have appointed thee each day for a year. Therefore, thou shalt set thy face toward the siege of Jerusalem, and thine arm shall be uncovered, and thou shalt prophesy against it. And behold, I will lay bands upon thee, and thou shalt not turn thee from one side to another, till thou hast ended the days of thy siege. Take thou also unto thee wheat and barley and beans and lentils and millet and fitches, and put them in one vessel, and make thee bread thereof according to the number of the days that thou shalt lie upon thy side. 390 days shalt thou eat thereof. And thy meat which thou shalt eat shall be by weight 20 shekels a day. From time to time shalt thou eat it. Thou shalt drink also water by measure, the sixth part of an hin. From time to time shalt thou drink. And thou shalt eat as barley cakes, and thou shalt bake it with dung that cometh out of man in their sight. And the Lord said, Even thus shall the children of Israel eat their defiled bread among the Gentiles, whither I will drive them. Then said I, Ah, Lord God, behold, my soul hath not been polluted, for from my youth up even till now have I not eaten of that which dieth of itself, or is torn in pieces, neither came there abominable flesh into my mouth. Then he said unto me, Lo, I have given thee cow's dung for man's dung, and thou shalt prepare thy bread therewith. Moreover he said unto me, Son of man, behold, I will break the staff of bread in Jerusalem, and they shall eat bread by weight and with care, and they shall drink water by measure and with astonishment, that they may want bread and water, and be astonished one with another, and consume away for their iniquity. हम पढ़ेंगे यहेजकेल की भविष्यवाणी की पुस्तक 3 अध्याय पहले वचन से। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियाँ इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है, परंतु इस्राएल ही के घराने के पास भेजा जाता है। अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास, जो तेरी बातें समझ न सके, तू नहीं भेजा जाता। निस्संदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता तो वे तेरे सुनते, परंतु इस्राएल के घराने वाले तेरे सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरे भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इस्राएल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। इसलिए तू उनसे न डरना और न उनके मुँह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं।
फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन, और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई है उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, चाहे वे सुने या ना सुने। तब आत्मा ने मुझे उठाया और मैंने अपने पीछे बड़ी घड़घड़ाहट के साथ एक शब्द सुना, यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है। और उसके साथ ही उन जीवधारियों के पंखों का शब्द जो एक दूसरे से लगते थे, और उनके संग के पहियों का शब्द, और एक बड़ी ही घड़घड़ाहट सुनाई पड़ी। तब आत्मा मुझे उठाकर ले गई और मैं कठिन दुख से भरा हुआ और मन में जलता हुआ चला गया, और यहोवा की शक्ति मुझ में प्रबल थी। और भी उन बंदियों के पास आया जो कबार नदी के तट पर तेलाबीब में रहते थे, और वहाँ मैं 7 दिन तक उनके बीच व्याकुल होकर बैठा रहा। पहरुए के रूप में यहेजकेल की नियुक्ति। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुँह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूँगा। हालेलुया। इसके लिए मुझे दुष्टों का अंत निश्चित होता है। इस बात का टाइटल मुझे देना पड़ता है क्योंकि दुष्ट को दुष्टता की अंत की बात हमको बता देना ज़रूरी है। ओके, ताकि अपने मन के अंदर वो सुधार लेने का मौका प्राप्त करे। ओके, कहीं ऐसा ना हो कि वो बाद में बोलेगा मुझे तो किसी ने बताया नहीं था इसके बारे में, इसीलिए मैंने तो दुष्टता कर ली, लेकिन मुझे अब मालूम पड़ा है दुष्टता करने से ऐसा होता है, तो फिर मैंने ये नहीं किया होता, तो मुझे किसी ने बताना तो चाहिए था, है ना। ऐसा बोलेंगे। इसकी वजह से हमको जो भी है वो सच्चाई के अंदर, वचन के अंदर जो है, चाहे वो कैसा भी कड़वा क्यों ना हो, हमको मुंह के द्वारा आवाज़ के साथ लोगों तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, ताकि उनको बचकर भागने का रास्ता मिले। हाँ, उनको परमेश्वर की दया का रास्ता मिले, ताकि वो उस दुष्टता को छोड़ पाए, अवसर प्राप्त करे। ठीक है, नहीं तो उनका मर जाना दुष्टता में हमारे ऊपर वो दाग लगा देगा, मतलब हमारे ऊपर वो लेखा लगा देगा। ठीक है, 19 वचन से आगे, पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि कोई परवाह नहीं है, दुष्ट का अंत होना ही होना है, चाहे वो माने या नहीं माने, या तो वो प्रभु में आ जाएगा या फिर उसका खात्मा हो जाएगा। ये निश्चित है परमेश्वर की ओर से। देखिए क्या लिखा है, पर यदि तो दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा। तो हम लोग कुछ करने से होता है क्या? नहीं। ओके, हमारे से नहीं, उसका एंड रिजल्ट परमेश्वर ने पहला ही फिक्स करके रख दिया है। अगर वो दुष्टता करना छोड़ देगा तो वो बचेगा, अगर नहीं छोड़ेगा तो वो उसके ही गलतियों में फंस के ख़त्म हो जाएगा वो। ओके, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। हमारे साथ उसका कुछ लेन देन नहीं रहेगा। फिर हम बोलने के बाद भी अगर वो दुष्टता करता है, फिर हमारा उसके साथ कोई लेन देन बचता नहीं है। ओके, हम हाथ साफ हो जाते हैं, हमारे पास परमेश्वर की दया मौजूद रहती है और हम इसके पार हो जाते हैं। जो परमेश्वर हमको देना चाहता है हम उसमें हो जाते हैं और दुष्ट का अंत पार कर जाते हैं। हम उसको निश्चित अंत में देख लेते हैं। ठीक है,
फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। समझा? इसके लिए हमको मुंह खोलकर लोगों के साथ बात करते बैठना पड़ता है, ताकि हम बोल सके कि भाई बहन तेरी ये ताकत है, ये शक्ति है। हमको मुंह खोलकर उनके शक्तियों का बात उन तक मुंह खुला बोलना पड़ता है। वो चाहे शर्म भरी रहे, चाहे बिना शर्म की रहे, कुछ भी रहे, हमको मुंह खोलकर उनको डांटना पड़ता है, फटकारना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है, देख तेरा खत्मा हो जाएगा, परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर आएगा, तू इसके आगे आ मत, तू इसके आगे कुछ कर मत, तू इसके आगे रुक जा, इसके पीछे रहना, इसके बाद आगे नहीं बढ़ना है। हमको बोलना पड़ता है, क्योंकि हम अगर नहीं बोलेंगे तो परमेश्वर हमसे लेखा लेगा उसके बारे में। ठीक है? और यहाँ पर क्या लिखा है? जो धर्म के कर्म उसने किए हो, उनकी सुधि न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझे से लूँगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम नहीं बताएंगे तो उसके गलतियों का हम समानता में पनिशमेंट पाएंगे। इसके लिए हमको उससे पीछा छुड़वाना पड़ता है, हमको बोलना पड़ता है, ए शैतान तू झूठा है, मैं तुझसे नफरत करती हूँ और तेरे एजेंट को मैं परमेश्वर के हाथों में देती हूँ। और उसके एजेंट को भी हमें बोलना पड़ता है, तू जो कर रहा है तुझे भुगतना पड़ेगा और मेरा परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया! मेरे परमेश्वर के पास दुष्ट के अंत करने के निश्चित योजनाएं हैं। ओके, तुझे उसका सामना करना पड़ेगा, तू मेरा पीछा छोड़ दे। इसका मतलब क्या हो जाता है कि हम उसके गंदे कामों में भागीदारी नहीं है, हम नफरत दिखाते हैं उनके गंदे कामों से। ठीक है? आगे क्या लिखा है? परंतु यदि तो धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप न करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। तो ये जिम्मेदारियों का काम हम पर सौंपा गया है। हमने उसको अपनी कुव्वत के अनुसार नहीं, हम परमेश्वर का हमारे अंदर का रास्ता है वो चल रहे हैं। जब हम ये सब बातें बताते हैं, हम प्रचार करते हैं, बोलते हैं, हम सारे बातों को खुल कर आपके सामने लाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि हम हेल्प कर रहे हैं, कि हम एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं कि आप बचाए जाओ, सुरक्षित रखो अपने आप को और परमेश्वर के भय में चलाओ। हालेलुया! यह हिजकिय्याह बोलने में असमर्थ। 22 वचन से आगे, फिर यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई और उसने मुझसे कहा, उठकर मैदान में जा और वहाँ मैं तुझसे बातें करूँगा। तब मैं उठकर मैदान में गया और वहाँ क्या देखा कि यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी के तट पर वैसा ही यहाँ भी दिखाई पड़ता है, और मैं मुँह के बल गिर पड़ा। तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँवों के बल खड़ा कर दिया। फिर वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ रहे। हे मनुष्य के संतान, देख वे लोग तुझे रस्सियों से जकड़कर बांध रखेंगे और तू निकलकर उनके बीच जाने नहीं पाएगा। मैं तेरी जीभ तेरे तालू से लगाऊंगा, जिससे तू मौन रहकर उनका डांटने वाला न हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं, तब तब तेरे मुंह को खोलूंगा और तू उनसे ऐसा कहना, प्रभु यहोवा यों कहता है, जो सुनता है वह सुन ले और जो नहीं सुनता वह न सुने। वे तो विद्रोही घराने के है ही। यरूशलेम की घेराबंदी का दर्शाया जाना। 4 अध्याय पहले वचन से, हे मनुष्य के संतान, तू एक ईंट ले और उसे अपने सामने रखकर उस पर एक नगर अर्थात यरूशलेम का चित्र खींच। तब उसे घेर अर्थात उसके विरुद्ध किला बना और उसके सामने दमदमा बांध और छावनी डाल और उसके चारों ओर युद्ध के यंत्र लगा। तब तू लोहे की थाली लेकर उसको लोहे की शहरपनाह मानकर
अपने और उस नगर के बीच खड़ा कर। तब अपना मुँह उसके सामने करके उसकी घेराबंदी कर। उस रीति से तू उसे घेर रखना, यह इस्राएल के घराने के लिए चिन्ह ठहरेगा। फिर तू बाई करवट लेट कर इस्राएल के घराने का अधर्म अपने ऊपर रख, क्योंकि जितने दिन तू उस करवट लेटा रहेगा उतने दिन तक उन लोगों के अधर्म का भार सहता रहेगा। मैंने उनके अधर्म के वर्षों के तुल्य तेरे लिए दिन ठहराए हैं, अर्थात 390 दिन। उतने दिन तक तो इस्राएल के घराने के अधर्म का भार सहता रहे। जब इतने दिन पूरे हो जाए तब तू दाहिनी करवट लेटकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए 1 वर्ष के बदले 1 दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। तू यरूशलेम के घेरने के लिए बाह उघाड़े हुए अपना मुँह उधर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी करना। देख, मैं तुझे रस्सियों से जकड़ूंगा और जब तक उसके घेरने के दिन पूरे न हो तब तक तू करवट न ले सकेगा। तो गेहूँ, जौ, सेम, मसूर, बाजरा और कठिया गेहूँ लेकर एक बर्तन में रखकर उनसे रोटी बनाया करना। जितने दिन तू करवट पर लेटा रहेगा उतने अर्थात 390 दिन तक उसे खाया करना। जो भोजन तू खाए उसे तौल तौल कर खाना, अर्थात प्रतिदिन 20-20 शेकल भर खाया करना और उसे समय समय पर खाना। पानी भी तू माप कर पिया करना, अर्थात प्रतिदिन हीन का 6वां अंश पीना और उसको समय समय पर पीना। अपना भोजन जौ की रोटियों के समान बनाकर खाया करना और उसको मनुष्य की विष्ठा के कंडों पर उनके देखते बनाया करना। फिर यहोवा ने कहा, इसी प्रकार से इस्राएल उन जातियों के बीच अपनी अपनी रोटी अशुद्धता से खाया करेंगे जहाँ मैं उन्हें जबरन पहुँचाऊँगा। तब मैंने कहा, हाय यहोवा परमेश्वर, देख, मेरा मन कभी अशुद्ध नहीं हुआ और न ही मैंने बचपन से लेकर अब तक अपनी मृत्यु से मरे हुए व फाड़े हुए पशु का मांस खाया और न किसी प्रकार का घिनौना मांस मेरे मुंह में कभी गया है। तब उसने मुझसे कहा, देख, मैंने तेरे लिए मनुष्य की विष्ठा के बदले गोबर ठहराया है और उसी से तू अपनी रोटी बनाना। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, देख, मैं यरूशलेम में अन्न रूपी आधार को दूर करूँगा, इसलिए वहाँ के लोग तौल तौल कर और चिंता कर कर के रोटी खाया करेंगे और माप माप कर और विस्मित हो कर पानी पिया करेंगे और इससे उन्हें रोटी और पानी की घटी होगी और वे सब के सब घबराएंगे और अपने अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आपने हमको वचनों का ज्ञान दिया। निश्चित है कि ये वचन हमारे अंदर जीवित करके हमारे समझ में तू उतारेगा और इसके अनुसार हमारा जीवन परमेश्वर के वचनों की पर्सनालिटी में बनाएगा। धन्यवाद करते हैं, हमें फिट एंड फिक्स कर रहा है, ईश्वरीय रचना में हमको ला रहा है पवित्र आत्मा, नासरी यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, जॉन 11 चैप्टर 35 वर्स से 46 वर्स, 1 क्रॉनिकल्स 12 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 35 से 46 वचन, पहले इतिहास की पुस्तक 12 अध्याय। अपने अकेले में व्यक्तिगत समय में इन वचनों को हम पढ़ना है। परमेश्वर का आत्मा इन वचनों के भेद रहस्य हमारे पर्सनालिटी व्यक्तिमत्व में जो उतरने की ज़रूरत है उसकी ओर हमारा ध्यान खींचेगा और हमें सिखाएगा। ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमें निश्चित पवित्र आत्मा का सहायता दिया है, हमने उसका लाभ उठाना है।
प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू फादर गॉड। पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद। हमें फिट एंड फिक्स करने के लिए आपका धन्यवाद। हमें ईश्वरीय रचना में लेकर आने के लिए आपका धन्यवाद। नासरी यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।